Okay. So, hello everyone. Good evening. Welcome to VoiceOver Masterclass by me. I'm Devanshi Sharma, and today we'll be talking a bit about voiceovers and the techniques that can be used. And apart from that, how you as a person can grow as a voiceover artist, what platforms you can reach, right? So, a bit about me. I started writing poetry at the age of maybe 17 or 18, and I used to love narrating them to my sister. So, since then, I was writing, and I have written more than 200 poetries. I'm writing a novel, and apart from that, I created my Insta page in 2023, and I've recorded over 120 projects. So that include ad films, social media ads, narratives, ideas, etc. So, as you can listen to me, my voice, the pitch is really high. It's clear, it's expressive and emotional, but my voice is जिसको हम हिंदी में बोलते हैं काफी पतली आवाज है. So yes. So as I was saying that सबकी आवाज is very different, and that's how we are going to use our voices so as to build stories around brands, around narratives, around social media. And this is what I want to share with you all today. So, the very first thing is, what is voiceover? Voiceover means the art of delivering a message using voice. Now, the message can be anything. It can be an audiobook. For example, you read a book and you are delivering it to people and you are trying to make them understand what the book is about. So, that is one aspect to it. It can be an advertisement in which you, as as a narrative, you're trying to make people understand about what the ad is and how the company wants to target people. Then you can have films, you can have, for example, there was this one very famous thing that Priyanka Chopra did. She did a dubbing for a film. Now there is a very clear difference between voiceovers and dubbings. Voiceovers are delivering messages using your voice. And what is dubbing? Dubbing is replacing the dialogues. For example, there's a Telugu film and you want to translate it into Hindi. So, what dubbing is? In dubbing, you just translate the dialogues and you replace the voice precisely that matches on screen, and the lip sync of the actor that is acting and the person that is lip syncing, it matches, right? So, this is a bit about voiceovers. Now, let's see what are the types of voiceovers. The first thing is commercial voiceover. For example, we have Pons, or the best example is Feviquick, right? We have a Feviquick advertisement, and there's a person, there are two people, they are sitting and they are speaking nothing, and something is actually being recorded and they are presenting something, and then पीछे से एक आवाज आती है झट से सब कुछ चुपका है Feviquick. So what is that? That's a commercial voiceover. What the company is trying to do, they are trying to send a message to you as a company or as an institute, right? Then we have corporate voiceovers. Corporate voiceovers क्या होते हैं? There are HRs who want to actually send repetitive messages to people, right? Now, how these repetitive messages are sent? ऐसा तो नहीं है they are going to repeat everything again and again. So, corporate voiceovers, they hire a person who actually records these messages, and on the systems of people these messages are popped up every now and then and you can hear it in the same voice. That's why there are, there are, for example, there is a Zoom meeting. You always hear the same kind of voice, and that voice is similar to AI, right? Then there are narrations. I write a story and I want you as people to understand what the story is about or what the story is. So, narrations are comparatively longer, commercials and cooperative voiceovers are shorter in time duration, right? So, I narrate the story to you
I make it such that, for example, in YouTube videos, you might have seen there are pages that tell you about कि ये एक पर्टिकुलर मूवी किस बारे में है. दे डू नॉट टेल यू पूरी मूवी प्ले नहीं होगी, बट दे डोंट प्ले होल ऑफ द मूवी. दे प्ले कि क्या मूवी का एस्पेक्ट है, किस बारे में मूवी है, और क्या आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. दैट इज नरेशन. देन वी हैव ऑडियो बुक्स. For example, I read a book, maybe let's say A Thousand Splendid Suns. There are many people who do not like reading, they like hearing, right? So an audiobook, what it does is, आपने पूरी बुक रिकॉर्ड कर दी, या तो आपने अपने जियो सावन पे डाल दी, आपने स्पॉटिफाई पे डाल दी, कुछ भी डाल दिया, उस पे डाल दिया, एंड पीपल आर लिसनिंग इट ऑडियो, इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, एंड चैप्टर वाइज या फिर हर थोड़े टाइम में दे आर गेटिंग अ पॉपअप कि भाई एक नया चैप्टर, एक नया कुछ एपिसोड उसमें इंट्रोड्यूस हुआ है. देन देयर आर आईवीआरस. आईवीआरस आर इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्सेस. यू नो, आईवीआरस में क्या होता है, यू कॉल एयरटेल एवरी टाइम, तो दे हैव सच अ बिग बिजनेस. वो हर बार तो रिप्रेजेंटेटिव आपका कॉल नहीं उठा सकते ना, तो दे रिकॉर्ड द मैसेज एंड इट प्लेस एवरी सिंगल टाइम. That there are such messages like press 1 so as to record this message, or press 2 so as to go to this site. तो उनको कहते हैं IVRs. देन है हमारे पास सोशल मीडिया कंटेंट. सोशल मीडिया कंटेंट इनिशियली बहुत नीश सेगमेंट था, बट अब क्योंकि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स इतना राइज कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया वॉइस ओवर्स बहुत बहुत ट्रेंड में है आजकल. इनफैक्ट मुझे सोशल मीडिया पे वॉइस ओवर्स की बहुत रिक्वेस्ट आती हैं. आपको क्या करना है, देयर इज अ ब्रांड दैट इज अप्रोचिंग यू एज एन इन्फ्लुएंसर. You are trying their products and you are actually giving a voiceover and explaining how good the product is, or how the product has turned out or has affected your life. And then there's dubbing. I explained already, it's just translation of dialogues and replacing it with the lip sync. Now we have certain voice techniques and warm up exercises. So the first thing is breath control. For example, there is this very famous song, uh, that is, uh, it starts like breathless, right? So usme it said that the singer has not taken even a single breath and he has been singing for a very long time. How is that? ऐसा तो नहीं है कि इंसान को सांस तो लेनी पड़ती है, बट ऐसा नहीं है ना कि उनको ये अपने आप आता है. इसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, ब्रेथ कंट्रोल होता है. ब्रेथ कंट्रोल का एक बहुत अच्छा तरीका है स्विमिंग. अंडर वाटर रहो बहुत देर, ब्रीदिंग अपने आप कंट्रोल होती है. पिच, मेरी पिच हाई है जैसे, तो मैं अगर और जोर लगा के गले से चीख के बोलूंगी तो लोगों के कान में चुभेगा. तो क्या करना है, बहुत सटल आवाज में, बहुत आराम से, बहुत, जिसको बोलते हैं हिंदी में सौम्यता से बोलो. एंड अपनी टोन बहुत सही रखो. इट शुड नॉट लाइक, इफ आई स्टार्ट विद कि देयर इज अ स्टेटमेंट आई एम सेइंग टू माय कलीग, यू गो एंड डू दिस, the tone is very rude. And the same thing I say, can you please go and do this? The tone is very soft, and people tend to listen to softer tones, right? And pace. Pace is the speed at which you are speaking. So now what you have to do is, it should not be too slow, it should not be too fast. In too fast, the issue is people are not going to understand what you're saying. They'll only listen to you and they will not get anything about what you have said. Too slow में इंसान बोर हो जाता है. So you have to keep in mind the pace. It is also about, if you are talking about a commercial or a corporate voiceover, उसमें you need a very
फास्ट वॉइस, क्योंकि आपके पास टाइम ही लिमिटेड है, 15 to 20 सेकेंड्स में आपको सारा मैसेज कन्वे करना है, तो आपकी पेस फास्ट होनी चाहिए. In an audiobook, people are engaged already, or in a YouTube narrative, or in a video, the pace should be such that कि इंसान को समझ आए और वो एंगेज रहे. अब क्लैरिटी की बात हुई. इफ यू आर जस्ट गोइंग टू फंबल, और एंड इट्स वेरी कॉमन टू फंबल, लड़खड़ाना जुबान और ये सब बहुत ज्यादा कॉमन है. बट इट्स नॉट कि हम उसको सही नहीं कर सकते हैं. ट्राई टू प्रोनाउंस द राइट वर्ड्स, डिक्शनरी लेके बैठो. एंड द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज रीड नॉवेल्स, रीड पोएट्रीज, लिसन टू अदर स्पीकर्स. टेड टॉक सुनो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. यू लिसन टू पीपल हु आर ऑलरेडी इन द फील्ड ऑफ स्पीकिंग एंड दे आर डूइंग ट्रिमेंडसली वेल. उससे you get an idea as to how important this is and how you can improve on it. Now, when we talk about pauses, the pauses are, for example, I say a sentence and I just say, can you please do it? There's no pause, right? अगर उसकी जगह ऐसे, can you please do it? So there was a pause in please. So it actually highlights the fact that please एक important word है. I am requesting to you that you can help me out, or you can, do something. So pauses are important, and the biggest thing in voiceovers is emotions. The first time when there's an RJ who approached me for a podcast, he said, Divyanshi, your voice is good for poetry, but your voice has too many emotions. बट जो इमोशंस हमें चाहिए पॉडकास्ट के लिए वो मिसिंग है. क्यों? क्योंकि पोएट्री में मैंने किया, अगर मैंने कोई रोमांटिक पोएट्री रिकॉर्ड करी या मैंने किसी भी टाइप की पोएट्री रिकॉर्ड करी, तो एक इमोशनल एस्पेक्ट वो तो आता है. लेकिन अगर इफ आई एम रिकॉर्डिंग हॉरर मे बी, है ना, और इनिशियली मुझे लगता था कि मेरी आवाज हॉरर के लिए नहीं है, बट देन आई रिकॉर्डेड अ वॉइस ओवर दैट वाज रिलेटेड टू अ हॉरर वीडियो. Then I understood it's not about the voice, it's about how you control the voice, how your emotions are actually getting played into. ये सारी वॉइस टेक्निक्स हैं, इन पे वी हैव टू वर्क. एंड हाउ डू वी वर्क? फर्स्ट इज लिप रोल्स. लिप रोल्स में आपको क्या करना है? आपको अपने माउथ की एक्सरसाइज करनी है. बहुत हेल्प करता है. ऐसे लगता है कि नहीं हेल्प करेगा, बट बहुत हेल्प करता है. जॉ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, ये सब आप गूगल करोगे ना, देयर इज ऑल्सो पेज बाय फेस योगा करके, ये सारी एक्सरसाइजेस वहां पे हैं. बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. छोटी चीजें लगती हैं बट अच्छा है, आप ये करो. टंग ट्विस्टर्स प्रैक्टिस करने में क्या होता है? टंग ट्विस्टर्स प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको अपनी वॉइस पे कंट्रोल आएगा. यू विल गेट टू अंडरस्टैंड हाउ वेल यू आर स्पीकिंग, हाउ यू हैव अ कंट्रोल ओवर योर ब्रेन व्हेन यू आर स्पीकिंग. आपको अपने दिमाग पे भी एक कंट्रोल है, वरना आप फंबल जरूर करोगे. हमिंग, हम, और इफ यू कैन जॉइन सिंगिंग क्लासेस इट्स अमेजिंग. आपको सिंगिंग आती है तो और अच्छी बात है. सिंगर्स बहुत अच्छा वॉइस ओवर कर सकते हैं. हमिंग करो, प्रैक्टिस सिंगिंग, प्रैक्टिस देयर वाज अ सॉन्ग, यू आर जस्ट ट्राइंग टू सिंग इट आउट. डजंट मैटर आप अच्छा गा रहे हो या नहीं, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बट ट्राई टू हम इट आउट, right? Then you have breathing exercises, yoga hai, meditation hai. Just breathe so that when the voiceover is actually required, you have a control over your breath. And beat sentence में आप हाँ या ऐसे करके ऐसे sounds नहीं निकाल रहे कि भाई सामने वाला भी इरिटेट हो जाए सुनने में या एंगेज ना रहे. जितने भी सिंगर्स होते हैं, आप मेनली वॉइस पे उनका फोकस करो. दे नेवर टेक ब्रेथ्स व्हेन द मोमेंट इज नॉट राइट. सो यू हैव टू हैव कंट्रोल ओवर योर ब्रीदिंग, राइट? देन आपको एक होम स्टूडियो सेटअप करना पड़ेगा. अगर आपके पास आईफोन है और आपके पास एयरपॉड्स हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग. आप उससे भी कर सकते हो. इनिशियली अपना बहुत इम्पोर्टेंटली ट्राई करो कि फोन के माइक से डायरेक्टली मत करो, ईयरफोन्स यूज करो. या तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फोन का माइक्रोफोन जो होता है वो सारे
सराउंडिंग वॉइसेस को भी रिकॉर्ड करता है. Either you have some good quality earphones, or you have such a soundproof or noise proof environment जहाँ पे कोई और आवाज आ ही नहीं सकती है, तो ठीक है. अदरवाइज ट्राई टू यूज अ माइक्रोफोन. माइक्स amazon पे अगर आप ढूंढोगे तो देयर आर माइक्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 700, और फिर हाईएस्ट तो देयर इज नो लिमिट. बट यू कैन टेक अ गुड क्वालिटी माइक फ्रॉम 700 to 1500 and you can start doing it, right? Then there is इंटरफेस. इंटरफेस क्या है? आपकी जो ऑडियो है उसको कंप्यूटर से कनेक्ट कौन कर रहा है? इट्स एन इंटरफेस. इंटरफेस यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज टर्म्स, क्योंकि मोस्टली आप अगर कोई वॉइस ओवर कर भी रहे हो तो आप आराम से किसी से एडिट करवा सकते हो. माइट बी थोड़े ज्यादा पैसे लग जाएं या कुछ लग जाएं, या दिस इज नॉट समथिंग एवरीवन इज इनटू. यू डोंट हैव टू बी, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट दीज आर ऑल द प्रोसेसेस. देन वी हैव एन अकूस्टिक ट्रीटमेंट. अकूस्टिक ट्रीटमेंट क्या होता है? आपकी जो नॉइसेस हैं, जो आपका साउंड है, उसको कैसे बैलेंस करना है, उसमें कैसे अगर शोर आ रहा है तो नॉइस कैंसलेशन कैसे करना है, वो सब करता है अकूस्टिक ट्रीटमेंट. देन इज रिकॉर्डिंग स्पेस. अब ऐसा कोई रिकॉर्डिंग स्पेस नहीं होना चाहिए जहाँ सामने पार्क है, पीछे से बैकग्राउंड से बहुत नॉइस आ रही है बच्चों के खेलने की, या फिर यू आर सिटिंग इन अ प्लेस जहाँ पे शायद आपकी फैमिली है और वो बहुत जोर से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो वहां पे आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं. तो एक खाली एक कमरा पकड़िए जहाँ पे, अब उसमें ये भी नहीं होना चाहिए दैट देयर इज एको. Echoes are also not good for your voiceovers. So try to balance things out and find a nice place so that you are able to speak properly. Then there are softwares. These are softwares. Some are for free, some are not. दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस अभी के लिए. इट्स कम्प्लीटली फाइन अगर आप वो सॉफ्टवेयर यूज नहीं भी कर रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है. ये बहुत ही हाई लेवल जब आप कमर्शियल्स करोगे और कभी किसी के लिए अगर आपने ऐड किया तो, और वहाँ पे आपको अपने आप स्पेस प्रोवाइड करवा देते हैं. सो इट्स कम्प्लीटली फाइन इफ़ यू आर नॉट यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर और एनीथिंग. बट इट इज़ जस्ट दैट आई हैड टू एक्सप्लेन इट बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट, right? Script reading skills. This is the most important thing. For example, I'll just share this one thing with you. ये एक पोएट्री है अमृता जी से. अब इसको आप कैसे पढ़ेंगे? एक तरीका है, आप पढ़ सकते हो. मैं तेनू फिर मिलांगी किथे किस तरह पता नहीं, शायद तेरी तखेल दी चिनाग बन के तेरे कैनवस ते उतरांगी, या खोरे तेरे कैनवस दे उत्ते एक रहस्यमयी लकीर बन के खामोश तेनू तकती रवांगी, मैं तेनू फिर मिलांगी. इसमें क्या था? फ्लो नहीं था, वर्ड्स गलत अटक किए थे, बीच में बहुत ज्यादा एक पॉइंट पे मैंने गलत भी बोला. एक तरीका है आप कैसे बोल सकते हो, मैं तेनू फिर मिलांगी किथे किस तरह पता नहीं, शायद तेरे तखिल दी चिनाग बनके तेरे कैनवस ते उतरांगी, या खोरे तेरे कैनवस दे उत्ते एक रहस्यमयी लकीर बनके खामोश तेनू तकदी रवांगी, मैं तेनू फिर मिलांगी. अब इसमें से आप देखो, क्लाइंट ब्रीफ क्या होता है? आपने आपको बोला कि मुझे आपसे पोएट्री चाहिए, वील टॉक अबाउट दिस पोएट्री ओनली. मुझे आपसे पोएट्री चाहिए. आपने बोला ठीक है. तो अब अगर ये पोएट्री है तो आपको इसका बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है. क्लाइंट आपको पक्का बताएगा कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है. ओवर इमोशनल होके या ये सोच के कि मुझे सबसे ज़्यादा आता है और आप उनकी ब्रीफ ही ना सुनो, इट्स वेरी रॉन्ग. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्लाइंट वांट्स बिकॉज दैट इज समथिंग दैट विल गेट यू वर्क रिपीटेडली, राइट?